Hi, I'm Rishika, and I know January feels very heavy for any JE aspirant. This month feels like a constant battle that is happening every day, every time in your mind. You just don't feel anything new about this month, even if it is like a new year. You don't feel, you're just mentally fighting with your own thoughts, with your own problems with, and I know and there's always multiple thoughts just constantly revolving in your mind, like what if I don't show up, what if I mess up the paper. You also think about the expectations from your family, from your friends, but you know what, the expectations comes more and more from your own thoughts. You question your thoughts that what if I don't do it, how will I face myself, मैं कैसे फेस कर पाऊंगी खुद को अगर मेरे से नहीं हुआ तो, एंड अ लॉट आई जस्ट कांट, मैं नहीं बता सकती एक स्टेटमेंट के थ्रू कि हाउ इट फील्स. यू नो व्हाट, एवरीवन सेज लाइक डोंट थिंक टू मच, you just focus on your preparations, everything will be all right. This statement is not completely true. नहीं है, ये सही statement नहीं है. Because you know what, along with your preparation, your peace of mind matters a lot, your calm mind matters a lot, your healthy mind matters a lot. No one literally talks about how to keep your mind healthy, even when there's everything messed up. No one talks about, and no one will ever talk about it. So you, yes, you, if you are preparing for it, you know, you need to know how to keep your mind calm. भाई तुम कितने भी अच्छे प्रिपेयर करके जाओ, तुम कितना भी अच्छा प्रिपेयर करके जाओ, 100%, 200% सिलेबस, अगर तुम्हारा माइंड फ्रस्ट्रेटेड होगा, एग्जॉस्टेड होगा, टायर्ड होगा ना, तो तुम्हारा पेपर नहीं अच्छा जाएगा. नेवर. And especially the day before your JE exam is very, very crucial. Trust me. I know उस दिन बहुत कुछ भसड़ मची होती है भाई, दिमाग में भसड़ मची होती है, बहुत कुछ चल रहा होता है, बट ट्रस्ट मी, इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट डे भाई. तुम्हारे एग्ज़ाम से भी इम्पोर्टेंट तुम्हारा एग्ज़ाम का पहले वाला दिन होता है. एंड ये कोई बताता नहीं है, ये कोई नहीं बताता. इट कम्स बाय एक्सपीरियंस. मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा हो सकता है until I experienced it last year when I was in your place. And I'll tell you what happened with me so that you don't follow, because I messed up a lot. I messed up a lot, and I'm specially making this video to just help people to escape my situation. To not do what I did, because what I did was foolish. सो लास्ट ईयर जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था जनवरी में, उसके पहले ही दिसंबर में अ, मेरी फैमिली में कुछ इंसिडेंट हो गया. एंड टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट fully comfortable to share exactly what happened, like in the internet where everyone is watching me. So I'll basically say the incident was really, really hurtful. ये बस, and that incident affected our whole family. So, and it happened in the like last of December, and it had its consequences like till I guess 17th of January. And by the way, I had my paper on 24th of January, so there was not much time left. उस टाइम घर पे सबने मान लिया था कि इट्स ओके अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट पे अच्छा नहीं करती हूँ. सो इसका कॉन्सिक्वेंसेस भी था एवरी डे. our house was filled with relatives, कोई कभी आ रहा है, कोई कभी जा रहा है. there was not a single space for me to study, and I was constantly adjusting because उस mind में I couldn't even study. so 17 तक ये ongoing रहा, ठीक है. and 17 के बाद I finally get a sing maybe a decent place to study, and I just बेसिकली अ शांत माहौल टू स्टडी. तो मैं पढ़ रही होती हूँ, एंड मेरे एग्ज़ाम के पहले ही मैं बहुत बुरी तरीके से डिसअपॉइंट हो चुकी थी. एंड व्हाट हैपेंड ऑन 23, लाइक द डे बिफोर माय एग्ज़ाम,
was the major reason I ruined my first attempt. तो बेसिकली क्या हुआ था कि 24th को आई वाज हैविंग माय एग्जाम एंड 23rd को मैं दोपहर तक, ऐसे सब बच्चे कर रहे होते, पैनिक कर रही थी, पढ़ रही थी। देयर वाज लाइक मैं ऐसे बेड पे बैठी हूँ, मेरे फिजिक्स के नोट्स इधर पड़े हैं, मेरे केमिस्ट्री के नोट्स इधर पड़े हैं, मैं मैथ्स कर रही हूँ, एनसीईआरटी इधर खुली हुई है, जस्ट कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि भाई क्या होगा। मैंने फ़ोन पे पीडब्ल्यू के क्लासेस चला दिए हैं। एंड शाम में आई वॉज टोटली फ्रस्ट्रेटेड। आई वॉज लाइक भाई अब नहीं होगा, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 6:30. I remembered the whole time, 6:30 in the evening, and I had my exam on in the morning shift, and there's a lot going in my house. Like I was crying कि भाई मुझसे नहीं होगा, I'm not made for this and that. बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे मेरे दिमाग में, बहुत सारे। एंड instead of calming my mind, what I did, मैंने हुडी पहनी, ठंड रहती है उधर, मैंने हुडी पहनी। और मुझे चाहिए था कि मुझे बस शांति चाहिए, मेरा दिमाग इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था, मुझे बस शांति चाहिए। तो मैं सोचा मैं बाहर चल जाती हूँ। एंड मैं घर पे नहीं बता सकती कि मैं बाहर जा रही हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने फ़ोन रखा। आई टेक्सटेड माई सिस्टर दैट आई एम गोइंग बाहर। इफ़ मम्मा पूछती है कि वेयर एम आई, टेल टेल हर कि वो बाहर गई है, आ जाएगी थोड़ी देर में। आई टेक्सटेड हर दिस एंड आई वेंट। मैं कोई पैसे लेके नहीं गई थी, मैं अपना फ़ोन घर पे छोड़ के गई थी, बिकॉज आई न्यू कि अगर मैं जाऊँगी बाहर एंड मैं बिना बताए जाऊँगी तो ऑफ कोर्स दिल कॉल मी एंड दिल से नहीं घर आ जा, फटाफट आ जा, एंड दिल डेफिनेटली कॉल मल्टीपल टाइम। बट मुझे चाहिए थी शांति, मुझे चाहिए थी शांति। तो मैं चली गई बाहर। एंड मैं जा रही हूँ एंड मैं सड़क पे जा रही हूँ। मैं एवरीथिंग इज जस्ट रिवॉल्विंग इन माई माइंड, हर एक चीज़, हर एक डे, द डे आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन, द डे, everything is was constantly revolving in my head and I was just so frustrated उस टाइम पे कि मैं बस चलते जा रही हूँ, चलते जा रही हूँ। एंड आई गेस 1 घंटे के बाद मैं घर आती हूँ एंड देन मेरी मम्मी पूछती कि कहाँ गई थी। शी टेल्स हाउ यू कैन बी सो केयरलेस, लाइक लाइक शी वेंट आउटसाइड टू लुक फॉर मी, बिकॉज उन्हें भी पता था मैं लाइक कितनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी एट दिस पॉइंट एंड शी वाज स्कैर्ड कि मैं कुछ गलत स्टेप ना ले लूँ। सो था एंड मैंने बोला, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी, मुझे बस बाहर जाना था, मैं चली गई, आई एम सॉरी दैट मैंने आपको नहीं बताया। एंड अगेन दैट एंड पता है, अगर इस मोमेंट पे अगर तुम रो रहे हो, तुम फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, नोबडी कैन हेल्प यू, इट्स यू बस एक तुम ही हो जो खुद की हेल्प कर सकते हो। एंड वो मुझे पता है रियलाइज नहीं होता, वो कॉन्स्टेंटली क्राइंग होपिंग कि कोई आके ठीक कर देगा, सब कुछ ठीक कर देगा, मेरा जी घटन बहुत अच्छा चल जाएगा। बट नहीं होता ऐसा। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी एक्शन यू आर टेकिंग। सो वही हुआ, मैं घर आई एंड आई वाज जस्ट लुकिंग ऑल माय नोट्स एंड रात के 9 बजे I just closed everything. I closed all my copies, all my notes, all my phones, and I just ate and I slept. I slept. मॉर्निंग में भी शायद 10:30 से 11 बजे की पेपर होगी, आई डोंट रिमेम्बर द टाइम। तो लोग क्या करते हैं, लोग जल्दी उठते हैं, मैं जल्दी भी नहीं उठी, बिकॉज पेपर देने के पहले ही मेरे मन में ये था कि मेरा पेपर बहुत बेकार जाएगा। आई हैव भले मैंने अभी पेपर नहीं दिया, बट मैं अंदर लाइक मैंने अपने माइंड में सोच लिया कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे से नहीं होगा। 1 साल जो मेहनत करी मैंने, 1 साल जिसमें मैंने 11th भी करा, मैंने 12th भी करा, कुछ काम नहीं आया। मैं उठी, आई गॉट रेडी, आई वेंट टू द सेंटर एंड आई सॉ द पेपर। एंड यू नो व्हाट, जब मैंने पेपर देखा, एवरीथिंग वाज ब्लैंक, एवरीथिंग वाज ब्लैंक। मतलब मुझे पेपर देख के समझ आ रहा था कि आई नो दिस, आई हैव डन दिस बिफोर, आई नो दिस, आई कैन डू दिस। बट मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं हुए अच्छे से नहीं हुए क्वेश्चन। क्यों नहीं हुए? बिकॉज आई वॉज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट द प्रीवियस नाइट, वॉट आई डिड, हाउ आई फ्रस्ट्रेटेड, हाउ आई क्राइड। जैसे मैंने हर एक कोशिश की अपनी मेंटल पीस को बिगाड़ने के लिए, एंड बस वही घूम रहा था मेरे दिमाग में। मैंने बहुत ट्राई करी कि नहीं, जस्ट फोकस फोकस ऑन योर पेपर, यू कैन डू दिस, नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड। एंड यू नो व्हाट, वो क्वेश्चंस ऐसे थे कि भाई अ नॉर्मल पर्सन कैन डू दिस। वैसे सिंपल क्वेश्चंस नहीं हुए, वैसे सिंपल क्वेश्चंस नहीं हुए।
मुझे मैथ्स आती नहीं थी उस टाइम तक। आई वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के मुझसे एक भी सवाल नहीं बने। इवन आई न्यू द फॉर्मूला, आई जस्ट couldn't do the calculation because I was so fucked up with my mind. So by this is what I wanted to tell you कि not alone your preparation can ever help you to do your best in your JEE attempt. And हेल्दी माइंड भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तुम्हारा मेंटल पीस इज़ वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट। पता है, अगर तुम्हारी प्रिपरेशन भी अच्छी नहीं होगी ना, और तुम्हारा माइंड बहुत शांत होगा, बहुत काम होगा ना, तो तुम वहाँ वहाँ एग्ज़ाम सेंटर में बैठ के कुछ ना कुछ करके वो क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लोगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें तुम बेसिक नॉलेज लगा के कर सकते हो। बट जब तुम्हारा माइंड ही एकदम जब तुम्हारे माइंड में बहुत कुछ चल रहा होगा, प्लस तुमने अपने आप को मान लिया है पहले ही, जैसे मैंने माना कि मैं तो फेल हूँ, मुझसे तो नहीं होगा, मेरा तो ये अटेम्प्ट बकवास चला जाएगा, बेकार गया है, मैंने सब कुछ मान लिया था। तो मैंने एक भी फेज नहीं छोड़ा था जिससे ये पता चलता कि मेरा पेपर अच्छा जाए। सो यस, थ्रू दिस वीडियो, अगर तुमने देखी है ये वीडियो, प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात मानो। प्लीज़ अपने एग्ज़ाम के एक दिन पहले रिवाइज या नोट्स कामली। अगर तुम्हें कोई टॉपिक नहीं आ रहा है, डोंट टच इट, छोड़ दो उसे। बस अपना अपने दिमाग को जितना शांत रख सकते हो, जितना प्यार से रख सकते हो, जितना केयरफुली रख सकते हो, उतना रखो। मत सोचो कि तुमसे नहीं होगा, क्या पता पेपर हार्ड, नहीं। तुम बस ये सोचो कि तुमने मेहनत करी है तो अच्छा ही होगा। ऑफ कोर्स तुमसे नहीं होगा तो किससे होगा? तुमने 1 साल पढ़ाई करी है, तुमने 2 साल पढ़ाई करी है इसके लिए यार। कुछ तो आता होगा पेपर में। ऐसा पेपर में कुछ तो आएगा जो तुम्हें आता होगा। बस ये सोच के just आराम से सब कुछ करो।